Hello dear students, I extend a very warm welcome to all of you in my English video class. I am sure children you all are doing good. You all are happy, healthy and safe in your homes. Do take very good care of yourself children. Stay happy, stay healthy, stay safe and at the same time study well for your exams. As you all know that your evaluation 3 days are approaching, so you must study well for the exam, you must prepare well for your exams, okay? See all the videos, go through the videos. Once again, every day we are posting videos and I am explaining all the exercises, everything in a very detailed manner, so you can clarify your doubts, you can complete your अनफिनिश्ड वर्क, कोई भी वर्क रह गया है तो आप उसको कंप्लीट कर सकते हो. ओके, वी हैव कंप्लीटेड लेसन नंबर 7, दैट इज फन वीकेंड. सो टुडे आई विल स्टार्ट लेसन नंबर 8, दैट इज जिंगो एंड टिंगो. सो चिल्ड्रन, open page number 77 in your English course book. In your main course book, open page number 77, Jingo and Tingo. ठीक है ना, नाम से it sounds so funny, Jingo and Tingo. तो नाम से लगता है कि ये बहुत एक फनी सा लेसन होगा, must be very interesting. The lesson goes like, Jingo, the jackal, and Tingo, the turtle, are good friends. Every evening, the two friends meet at the river bank. Tingo brings fish for Jingo. They eat and talk for hours. Sometimes they play games too. Now children, let us see what are the different parts of speech that are used in this paragraph. Okay, the first paragraph is Jingo, the jackal, and Tingo, the turtle. Turtle. Jingo, the jackal, and Tingo, the turtle, are good friends. Every evening, the two friends meet at the river bank. Tingo brings fish for Jingo. They eat and talk for hours. Sometimes they play games too. Okay. Now let us see the different parts of speech that are used in the sentence. Okay. So we will start with nouns. Nouns, that is naming words. The first word itself, Jingo, this is a naming word, this is a name. Jingo and Tingo. Jingo, this is the first word of the sentence. यहाँ से sentence start हो रहा है. The first
alphabet is capital. But otherwise also Jingo is the name of an animal and Tingo. Okay, both are proper nouns. So therefore T is capital. T also is capital because it is the name of an animal. ये proper noun है, name है, and therefore capital T is used. Even though Tingo is in the middle of a sentence. ये जो Tingo word है, इस sentence के बीच में है, but still capital T is used because it is the name of an animal. It is a proper noun. Okay? So Jingo, Tingo, then Jackal. This is also a proper. This is also a noun. This is common noun. Okay? Jackal. Then turtle. Turtle is also a common noun. Turtle. Proper noun and common noun मैंने बताया था कि proper nouns are the name of any person, any place, any city, any country. ठीक है? And common noun जो कि common मतलब जो बहुत सारे हमें मिल जाते हैं. Then are good friends. और क्या है यहाँ पे naming word? Friends. Friends मतलब दोस्त. Friends is also a naming word. Friends. Friends. ठीक है? Then every evening. Evening is a time of a day. Morning, evening, day, night. So evening is also a noun. Naming word. Evening. Every evening, the two friends. Friends we have already used. Okay? The two friends meet at the river bank. River bank is also a naming word. Okay? River bank. RIVERBANK. River bank is also a naming word because river bank मतलब नदी का किनारा. ठीक है? So that is a place. River bank is also a naming word. It is the name of a place. River bank. Tingo brings fish. Then fish. 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 Tingo brings fish for Jingo. They eat and talk for hours. Sometimes they play games. Games is also a naming word. ठीक है? Games is also a naming word. It is a common noun. बहुत सारे games आते हैं. Okay? So many naming words are there. Jingo, Tingo, Jackal, Turtle, Friends, Evening, Riverbank, Fish and Games. Now let us see what are the describing words. That is adjectives. 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 Okay? What adjectives are used? Jingo, the Jackal and Tingo, the Turtle are good friends. Here the word good. ठीक है? यहाँ पे जो word good यूज हुआ है, ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? This word good describe the friends. कैसे friends थे? अच्छे दोस्त थे. So here the word good is used for friends. So good is an adjective. Good friends. Every evening the two friends. Two is also an adjective. Okay? Good friends, अच्छे दोस्त थे. और two friends. Two is also an adjective because it tells the number of friends. How many friends? Two friends. Good friends मतलब कैसे friends थे? अच्छे friends थे. And two friends. Two मतलब number of friends. How many friends? Two friends. So two is also an adjective. Two friends meet at the river bank. Tingo brings fish for Jingo. They eat and talk for hours. Sometimes they play games. Only two adjectives are used. Now let us see the action words, that is verbs. कौन-कौन से verbs हैं इसमें? Now verbs हैं and Tingo the turtle are good friends. Every evening the two friends meet. Meet, मिलना. It is an action. So meet is an action word. Then Tingo brings. Brings is an action word. लाना. Meet का मतलब क्या है? मिलना. They meet. Then brings मतलब लाना. Then fish for Jingo. They eat. Eat is a verb. Eat and talk. Talk.
Then sometimes they play games too. Play is also an action verb. Okay? So other words are also there. बाकी भी सारे words हैं. बहुत सारे small words हैं जो कि जैसे and है. And is conjunction you can say. जैसे conjunction and at is preposition. ठीक है? For is again preposition. अब यहाँ पे preposition कौन कौन से हैं? Only the at the river bank. Where? At the river bank. तो जो मेन वर्ड्स है वो मैंने इसमें आपको बताया. ओके, नाउ आफ्टर दिस, अभी इसके बाद जो लेसन है दैट इज इन फर्स्ट पर्सन, जहां पे दोनों आपस में कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं. ओके, जिंगो एंड टिंगो आर कन्वर्सिंग, मतलब दे आर टॉकिंग टू ईच अदर. सो अभी इसके बाद जो लेसन है दैट इज इन फर्स्ट पर्सन. फर्स्ट पर्सन मीन्स जिंगो एंड टिंगो. जैसे आप अपने फ्रेंड्स आपस में बातचीत करते हो, ठीक है ना, तो सिमिलरली यहाँ पे जिंगो और टिंगो दोनों फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे हैं. सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यहाँ से अभी लेसन फर्स्ट पर्सन में है. ठीक है, मतलब आपस में बात कर रहे हैं. ओके चिल्ड्रन, सो जिंगो द जैकल सेज हाउ आर यू माय फ्रेंड, तुम कैसे हो मेरे दोस्त. टर्टल सेज आई एम फाइन, थैंक यू, लुक आई हैव अ बिग फिश फॉर यू. ओके चिल्ड्रन, सो दिस इज इन फर्स्ट पर्सन. नाउ जैकल आस्क हाउ आर यू माय फ्रेंड. जैसे आप जब अपने फ्रेंड से मिलते हो, व्हेन यू मीट योर फ्रेंड, तो आप पूछते हो हाउ आर यू, हेलो, बहुत दिनों बाद मिले, कैसे हो. सो वी आस्क दीज क्वेश्चंस जब आप अपने फ्रेंड से मिलते हो. तो जिंगो द जैकल इज आल्सो आस्किंग हिज फ्रेंड हेलो हाउ आर यू, कैसे हो तुम. सो टिंगो द टर्टल सेज आई एम फाइन, थैंक यू. जब दिस इज अ बेसिक मैनर, ईवीएस में पढ़ा था कि व्हेन somebody says something, जब आप किसी ने पूछा कि how are you, तो then we say I am fine, thank you. Thank you you are saying to other person for asking, कि मतलब हमारा वेल बीइंग पूछने के लिए किसी ने हमसे पूछा कि आप कैसे हो. इन रिस्पॉन्स like we say thank I am fine, और साथ में हम थैंक यू भी बोलते हैं. ओके, दिस इज जस्ट showing your good manner. The turtle says I am fine, thank you. Then he says, look, I have a big fish for you. तुम्हारे लिए मैं एक बड़ी सी फिश लेकर आया हूँ. Why? Because he knows that his friend Jingo likes to have fish. Jingo जैकल को फिश बहुत पसंद है, and since turtle lives in water, वो उसके लिए फिश लेकर आया था. तो he saying कि look, I have bought a fish for you, big fish, बड़ी सी फिश लेकर आया हूँ. Jingo is very happy. Jingo says thank you Tingo. ठीक है, Jingo is very happy. He says thank you Tingo. Then one evening, मतलब ऐसे ही they used to meet every day. दोनों they used to meet every day. ठीक है, रोज टिंगो brings fish for Jingo. टिंगो जब जिंगो के लिए फिश लेकर आता है, they eat and talk for hours. वो दोनों बहुत अच्छे, जैसे फर्स्ट पैराग्राफ says जिंगो the जैकल and टिंगो the turtle are good friends. मतलब दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं. ठीक है, और रोज शाम को दोनों कहाँ मिलते हैं? Where do they meet? They meet at the river bank. और रोज टिंगो जो है वो जिंगो के लिए फिश लेकर आता था. फिश लेकर आता था, वो दोनों फिश खाते हैं और बैठ के बहुत देर तक बात करते हैं. टॉक फॉर आवर्स. टॉक फॉर आवर्स का मतलब है कि बहुत देर तक बैठ करके बात करते हैं. एंड समटाइम्स दे प्ले गेम्स भी. कभी कभी वो लोग गेम्स भी खेलते हैं. ओके, तो उसके बाद वन इवनिंग, मतलब रोज ऐसे ही चलता था कि रोज वो दोनों रिवर बैंक पे मिलते थे. टिंगो जो है वो जिंगो के लिए फिश लेकर आता था, खाते थे और खेलते थे दोनों कभी कभी, और बहुत देर तक बात करते थे. तो ऐसे रोज चलता था. वन इवनिंग मतलब एक दिन, एक शाम को क्या हुआ कि जब जिंगो वहां पहुंचा, व्हेन जिंगो रीच्ड देयर, उसने देखा कि उसका जो फ्रेंड टर्टल है टिंगो, ही वाज नॉट देयर. सो जिंगो गॉट वेरी वरीड, उसको बहुत चिंता हुई. एंड उसने जब नहीं देखा तो उसने सोचा कि आई होप माई फ्रेंड इज ऑल राइट. जैसे कि आप देख रहे हो, ये जो बबल्स जैसे बने हैं, सर्कल, ऐसा बनाने का मतलब होता है कि ही इज थिंकिंग. अगर कोई भी दिखाते हैं कि कोई कुछ सोच रहा है तो ऐसा बनाते हैं. तो जिंगो थिंक्स, सो बट जस्ट प्रे कर रहा है कि आई होप माई फ्रेंड इज ऑल राइट, बिकॉज एवरी इवनिंग दे यूज्ड टू मीट. रोज शाम को मिलते थे, बट उस दिन टिंगो नहीं आया. तो ही वॉज वेरी वरीड, जिंगो वॉज वेरी वरीड. वो ही इज जस्ट होपिंग दैट हिज फ्रेंड इज ऑल राइट, उसका फ्रेंड ठीक ठाक हो. ओके,
एंड सडनली उसने टिंगो की आवाज सुनी एंड टिंगो वॉज कॉलिंग आउट हिज नेम, ही वॉज शॉटिंग जिंगो जिंगो, जोर जोर से वो जिंगो को बुला रहा था। तो यही सोच करके उसको बहुत थोड़ा सा घबराहट हो गई जिंगो को कि मेरा फ्रेंड, आई होप माई फ्रेंड इज ऑल राइट, क्योंकि वो इतनी जोर जोर से मेरा नाम बुला रहा है। ठीक है, तो टर्न द पेज चिल्ड्रन, टर्न द पेज नाउ एंड सडनली जिंगो सीज, अचानक से जिंगो ने क्या देखा, उसने देखा ओह लिंगो लायन हैज कॉट माई फ्रेंड। अभी जब हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में इंटरजेक्शन पढ़ा था ना, इंटरजेक्शन मतलब व्हेन वी एक्सप्रेस, कोई जब सडन फीलिंग दिखानी होती है, सडनली हम जब किसी बात पे रिएक्ट करते हैं, तो यहाँ पे आप देखो जिंगो सेज ओह, बिकॉज ही, उसको तो एकदम वो शॉक रह गया, उसने देखा कि लिंगो लायन ने टिंगो को पकड़ लिया है। ओह लिंगो लायन हैज कॉट माई फ्रेंड। ठीक है, तो ओ इज एन इंटरजेक्शन। ओके, सो ही सेइंग ओह लिंगो लायन ने तो मेरे फ्रेंड को पकड़ लिया है, अब मैं क्या करूं। एंड टिंगो इज शाउटिंग हेल्प हेल्प, टिंगो जो है वो हेल्प के लिए बुला रहा है। ओके, सडनली जिंगो ने क्या देखा, जिंगो ने देखा कि लिंगो लायन हैज कॉट द टर्टल, लिंगो लायन ने उसके फ्रेंड टर्टल को पकड़ लिया था एंड टर्टल वाज शाउटिंग फॉर हेल्प। ठीक है, टर्टल जो है, टिंगो जो है वो जिंगो को बुला रहा था उसकी हेल्प करने के लिए। ठीक है, तो अब नाउ उसने देखा कि जिंगो ने देखा कि लिंगो लायन ने टर्टल को ऐसे करके नेक से पकड़ा हुआ था और उसको समझ में आ गया जिंगो को कि लिंगो लायन जो है he was trying to break his friend's shell। टर्टल देखा है ना, उसकी पीठ पे ऐसे करके शेल होता है, पीठ पे ऐसे उठा हुआ होता है, तो उसका जो शेल होता है दैट इज वेरी हार्ड, बहुत वो हार्ड होता है। तो जिंगो ने देखा, उसको समझ में आ गया कि लिंगो जो है लायन, वो उसके फ्रेंड का जो शेल है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है एंड तोड़ करके खाने की कोशिश कर रहा है। तो उसको पता था कि अगर उसका शेल टूट जाएगा तो इस फ्रेंड माइट डाई, उसको बहुत तकलीफ होगी, बहुत दर्द होगा उसको। तो अब उसने सोचा कि क्या करूं मैं, मुझे तो अपने फ्रेंड को हेल्प करना जरूरी है, मुझे तो कैसे भी अपने फ्रेंड को बचाना है। सो नाउ अगेन यू कैन सी कि देखो ये बबल्स बबल्स जैसे करके बनाए हैं कि नाउ जिंगो इज अगेन वंडरिंग कि मैं क्या करूं। ही इज ट्राइंग टू ब्रेक हिज शेल, आई मस्ट सेव माई फ्रेंड। नाउ जिंगो इज वंडरिंग कि वो मेरे फ्रेंड को मारने की कोशिश कर रहा है, उसके शेल को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। सो आई मस्ट सेव माई फ्रेंड। अभी देखो जो इनका जो कॉन्वर्सेशन चल रहा है उसमें व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे टिंगो सेज आई हैव अ बिग फिश फॉर यू, सो बिग इज एन एडजेक्टिव, बिग फिश। व्हाट काइंड ऑफ फिश? बिग। सो बिग इज एन एडजेक्टिव विच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द नेमिंग वर्ड फिश, जिसको कि फिश को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया है। ओके, देन turn the page children, the next page पे suddenly जिंगो sees, suddenly मतलब अचानक से। ठीक है, suddenly is an adverb, sees मतलब verb देखना, see is a verb and suddenly जिंगो sees मतलब अचानक से जिंगो ने देखा। ठीक है, suddenly जिंगो sees oh लिंगो lion has caught my friend। caught is again a verb, caught is the past form of catch, पकड़ना। caught is the past form of catch and this Tingo turtle was shouting for help, so he is trying to break his shell। now try is also an action word, try मतलब कोशिश करना, break मतलब तोड़ना, so break is also an action word। his shell मतलब जो उसके ऊपर जो turtle and tortoise के ऊपर जो होता है, तो shell is a naming word, it is a part of their body। टर्टल एंड टॉर्टस का ये एक बॉडी का ये पार्ट है। आई मस्ट सेव माई फ्रेंड, सेव इज एन एक्शन वर्ड, सेव मतलब बचाना, तो मुझे अपने फ्रेंड को बचाना बहुत जरूरी है। देन जेकॉल जो है, जेकॉल एसेस दे आर सपोज टू बी वेरी क्लेवर, उसको एक आइडिया आया, ही गोज टू लिंगो लायन। तो थोड़ा उसको डर तो लग ही रहा होगा बिकॉज लायन है, लायन तो तुरंत मार सकता है, बट फिर भी वो लिंगो के पास गया और उसने बोला कि मिस्टर लिंगो द शेल इज टू हार्ड, यू कैन नॉट ब्रेक इट। उसने बोला कि मिस्टर लिंगो उसका जो शेल है वो बहुत हार्ड, बहुत कड़ा है, आप उसको तोड़ नहीं सकते हो। ठीक है, हार्ड इज कड़ा, हार्ड इज एन एडजेक्टिव। यहाँ पे हार्ड वर्ड किसके लिए यूज हुआ है? टू डिस्क्राइब द वर्ड
शेल। शेल को डिस्क्राइब करने के लिए ये वर्ड यूज किया है, ठीक है। तो ही सेइंग कि यू कैन नॉट ब्रेक इट, आप इसको तोड़ नहीं सकते हो। सो लायन सेज ओह यस इट इज वेरी हार्ड। उसने कहा क्या सचमुच ये तो बहुत कड़ा है। नाउ लिंगो ने सोचा कि अब मैं क्या करूं, तो लिंगो ओके सो उसने देखा, जिंगो ने देखा कि लिंगो लायन ही वाज ट्राइंग टू ही हैज caught his friend and he was trying to break his shell. So he was very much worried. उसको लगा कि ये तो अगर शेल तोड़ देने से my friend would die. तो उसने सोचा कि क्या करें। He went to the lion and said कि Mr. Lingo, the shell is too hard. You cannot break it. आप इसे तोड़ नहीं सकते हो, ये बहुत hard है। Here the word hard is an adjective and it is used for shell. शेल के लिए इस वर्ड को यूज किया गया है, ठीक है। हार्ड शेल, जैसे कोकोनट का शेल, शेल मतलब जो बाहर का छिलका भी होता है, जैसे कोकोनट शेल इज टू हार्ड, ओके। सो लिंगोस लायन सेज यस इट इज अ गुड आइडिया। नाउ गुड हियर इज एन एडजेक्टिव एंड गुड किसके लिए यूज किया है, गुड इज यूज फॉर आइडिया। यस इट इज अ गुड आइडिया, ये बहुत अच्छा आइडिया है। सो जिंगो टेल्स द लायन to put the turtle in water. उसने बोला कि put the turtle in the water and the water will make the shell soft. यहाँ पे put जो है, the word put is an action word. verb है ये। उसने बोला कि put the turtle in the water. turtle को वापस पानी में रख दो, ठीक है। in the water will make the shell soft. तो पानी है वो शेल को सॉफ्ट बना देगा। Soft is an adjective which is used for shell. Shell के लिए यूज किया है। जैसे उसने पानी में रखा तो टर्टल तो पानी में स्विम कर सकता है। तो द मोमेंट लिंगो लायन पुट द टर्टल इन वाटर, टिंगो टर्टल स्विम्स अवे एट वंस। टिंगो जो है वो तुरंत स्विम करके भाग गया एंड जिंगो जैकॉल रन्स अवे। जैसे ही लिंगो लायन ने टर्टल को पानी में रखा, क्या हुआ, वो तुरंत अपना स्विम करके आगे निकल गया और जिंगो जैकॉल जो था ही ऑल्सो रन्स अवे, वो भी भाग जाता है, ठीक है। तो स्विम इज एन एक्शन वर्ड एंड रन्स इज ऑल्सो एन एक्शन वर्ड। द लायन रोज एंग्रीली। लायन बहुत जोर से गुस्सा आया और उसने देखा कि दोनों के दोनों भाग गए। वेरी मच एंग्री। लायन रोज एंग्रीली। नाउ रोअर मतलब गुर्राना। तो रोअर जो है वो एक नेमिंग वर्ड भी है। इट इज द नेम ऑफ लायंस साउंड। जो एनिमल्स की अलग अलग साउंड होती है, तो लायन के साउंड को क्या बोलते हैं, रोअर। सो इट इज अ नेमिंग वर्ड, बट यहाँ पे जो उसका एक्शन है, ही इज रोअरिंग, वो गुर्रा रहा है। यहाँ पे रोअर उसका एक्शन है। सो रोअर इज अ वर्ब है, यहाँ पे रोअर एक्शन वर्ड है। द लायन रोअर्स एंग्रीली। हाउ, कैसे, एंग्रीली इज एन एडवर्ब। जैसे मैंने बताया था कि एडवर्ब्स आर द वर्ब्स विच डिस्क्राइब अनदर वर्ब। जो वर्ब को जो डिस्क्राइब करते हैं दे आर एडवर्ब्स, ओके। सो एंग्री इज एडजेक्टिव। एंग्री मतलब गुस्से से, और एंग्री माने गुस्सा होना। एंग्री इज एन एडजेक्टिव, एंग्रीली इज एन एडवर्ब, ठीक है। गुस्से से गुर्रा है, कैसे, गुस्से से। Thank you, my clever friend. Now Tingo says thank you to Jingo. He says thank you, my clever friend. Here clever is an adjective. Clever adjective. Clever किसके लिए यूज हुआ है, friend के लिए। Clever is used for friend. What kind of friend? Clever friend. Okay. So Jingo says welcome Tingo. Friends are there to help and care. EVS में हमने पढ़ा था कि when somebody says thank you to you, कोई अगर आपको थैंक यू बोलता है, what should you say? You should say welcome, ठीक है। तो कोई जब हमें थैंक यू बोलता है तो हम वेलकम बोलते हैं। तो जब टिंगो ने उसको थैंक यू बोला जिंगो को, तो जिंगो सेज वेलकम माय फ्रेंड। फ्रेंड्स आर देयर टू हेल्प एंड केयर। फ्रेंड्स का तो काम ही है एक दूसरे की हेल्प करना, एक दूसरे की केयर करना। हेल्प इज अ वर्ब, केयर इज ऑल्सो अ वर्ब।
दोनों हेल्प एंड केयर बोथ आर एक्शन वर्ड्स बिकॉज दे टेल अस द एक तरह का एक्शन है ये, ठीक है, हेल्प करना, किसी की केयर करना, दीज आर ऑल्सो काइंड ऑफ एक्शंस. ओके, सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम व्हाट डू मतलब आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक शुड बी द मॉरल ऑफ द स्टोरी? इस स्टोरी का मॉरल क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है? वी कैन से दैट द मॉरल कैन बी अ फ्रेंड इन डीड इज अ फ्रेंड इन डीड, मतलब जो जरूरत के टाइम जो हमें काम आता है वही हमारा असली फ्रेंड है, ठीक है ना. जिस समय दोनों जिंगो एंड टिंगो बोथ ऑफ देम वर वेरी गुड फ्रेंड्स, दे यूज्ड टू मीट ईच अदर एवरी इवनिंग, साथ में खेलते थे, साथ में बहुत देर तक बात करते थे, फिश खाते थे. लेकिन जब जरूरत पड़ी, व्हेन द टर्टल टिंगो वाज कॉट बाय लिंगो लायन, तो जिंगो ने विदाउट फियरिंग फॉर हिज ओन लाइफ, अपनी जान की चिंता नहीं करके, बिकॉज लिंगो वॉज अ लायन, जैसे उसने टर्टल को पकड़ लिया था तो जगौर को भी मार सकता था, तो जिंगो वॉज स्कैर्ड बट स्टिल, लेकिन फिर भी उसको लगा कि नहीं, आई मस्ट सेव माई फ्रेंड. उसको अपने फ्रेंड की चिंता थी, तो उसने ये सोचा कि मुझे अपने फ्रेंड को बचाना जरूरी है. तो ही डिड नॉट केयर फॉर हिज ओन लाइफ, अपनी लाइफ उसने चिंता नहीं की. उसने सोचा कि पहले मुझे टिंगो को बचाना है, ठीक है. तो ही वॉज अ ट्रू फ्रेंड, मतलब सचमुच वो बहुत एक अच्छा दोस्त था, सच्चा दोस्त था, कि जिसने जरूरत के टाइम पे अपने फ्रेंड की हेल्प की. अगर वो हेल्प नहीं करता तो लिंगो लायन जो है वो टिंगो को मार देता, उसका शेल ब्रेक करता, उसको जस्ट इमेजिन टिंगो को कितनी तकलीफ होती. सो वी कैन से एक तो ये मॉडल हो सकता है कि अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, एक ये मॉडल हो सकता है. देन वी कैन ऑल्सो से कि जब कोई परेशानी होती है, सो इफ वी थिंक वाइजली, अगर हम उस समय पैनिक नहीं होकर के आराम से बैठ करके सोचेंगे तो जरूर हमें कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा, ठीक है. अगर हम डर जाएंगे, पैनिक कर जाएंगे, पैनिक करने का मतलब होता है डर जाना, तो अगर हम डर जाएंगे, पैनिक कर जाएंगे, तो हो सकता है हमें कोई आइडिया ना आए. बट इफ वी सिट क्वाइटली, अगर हम चुप पहले शांत से बैठ करके, पहले अपने दिमाग को शांत करके अगर हम कुछ सोचेंगे तो डेफिनेटली कोई ना कोई आइडिया हमें आ जाएगा. सो ये भी एक मॉडल हो सकता है कि इन केस ऑफ एनी ट्रबल वी शुड नॉट गेट पैनिक, हमको पैनिक नहीं होना चाहिए. वी शुड थिंक, वी शुड सिट क्वाइटली एंड थिंक, मतलब शांति से पर बैठ करके हम कुछ सोचेंगे तो कुछ ना कुछ आइडिया डेफिनेटली आ जाएगा. ओके, तो ये भी एक मॉडल हो सकता है कि हम मतलब शांति से सोचेंगे तो कुछ ना कुछ एक आइडिया आ जाएगा. या हम जिसको कहते हैं कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, मतलब जहाँ चाह है वहाँ राह है. मतलब यहाँ पे जिंगो ने सोचा कि उसे ही हैज टू सेव हिज फ्रेंड टिंगो, उसने सोचा कि उसको अपने फ्रेंड की हेल्प करनी है, अपने फ्रेंड को बचाना है. तो उसने सोचा एंड विदाउट फियरिंग फॉर हिज ओन लाइफ ही वेंट टू लिंगो लायन. तो उसको अपने फ्रेंड को बचाने की चाह थी, मतलब वो चाहता था कि वो उसने डिसाइड कर सोच लिया था कि अपने फ्रेंड की तो मुझे हेल्प करनी ही है. ओके, सो दिस इज द लेसन एंड द वर्ड मीनिंग्स इन दिस लेसन आर, वन इज रिवर बैंक, रिवर जैसे सी होता है, सी का साइड होता है, तो दैट इज नोन एज सी बीच, जो समुद्र का किनारा होता है उसको सी बीच बोलते हैं. और रिवर का जो साइड होता है दैट इज रिवर बैंक. नाउ चिल्ड्रन, रिवर बैंक इज ऑल्सो अ कंपाउंड वर्ड. इट इज made after joining two words, one is river and one is bank. river और bank को मिला करके ये word बना है river bank. river is a different word, bank is a different word. जब हमने इन दोनों words को combine कर दिया तो नया word क्या बना? compound word is river bank. okay, river bank is the side of a river. hope मतलब हिंदी में जिसको कहते हैं आशा, उम्मीद, विश करना. जैसे उसने बोला ना कि I hope my friend is all right, तो मैं आशा करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा फ्रेंड ठीक होगा. सो होप मतलब विश. देन सेव, आई मस्ट सेव माई फ्रेंड, मतलब मुझे अपने फ्रेंड को बचाना ही होगा. तो सेव का मतलब है कि कीप सेफ फ्रॉम हार्म और डेंजर, मतलब किसी नुकसान से या किसी खतरे से किसी को बचाना, दैट इज सेविंग. से बोलते हैं ना कि द चाइल्ड वॉज ड्राउनिंग इन द वाटर, द मैन सेव्ड हिज लाइफ, मतलब कोई बच्चा जैसे पानी में डूब रहा था, एक आदमी ने उसकी जान बचाई. तो सेव मतलब किसी भी खतरे या किसी भी नुकसान से बचाना, दैट इज सेव. ओके, सो चिल्ड्रन, दिस लेसन इज ओवर, रीडिंग पार्ट इज ओवर.
Now in the next class we will start with comprehension exercise. Comprehension exercise, that is to check your reading skill and your understanding कि आपको lesson कितना समझ में आया. Okay children, so that is all for the day. Thank you so much.